ladies and gentlemen, and our respected honorable guest. Myself is Anjani Tamang from Gangtok, Sikkim. Though it is a totally new subject for me, I would like to thank for the organizer of this seminar. It gives me immense pleasure to welcome you all in this seminar. We fully appreciate you finding in the time to be with us despite your tight schedule. The agenda of this seminar is that we wish to spread awareness about our new concept and technology of Discover Brain and Invisible Cup present by TAS Technologies Limited. Before telling you about this concept, I would like to draw your attention towards the various problems which are being faced by most of us parenting to our children and office employees. We all will agree to the fact that each one is born with unique potentials and develop their own personality, styles, moral values and interests. Still, we exert strong emphasis on the prevailing social trends in the career building process of our kids. We ignore the fact that every child is unique and his or her intelligence is different from others. Discover Brain is designed to know about the inborn talent and learning style of children with a view to know about the learning patterns of children so as to adopt the best way of the technique in accordance with the learning of style of children and know about the suitable career option for them. The basic idea of Discover Brain is to reduce the elaborated process of career building which involves time as well as money. This concept is really useful as the inborn talent of the person gets reflected in the kind of work he or she does and should be the determining factors for deciding his or her profession also. If a person opts for a career in which he has got inborn talent, he would obviously do better in that field. Don't you think so? Another major problem which we face in offices and in our homes of the internet abuse and technology misuse. Internet abusers range from upper management employees in private office to the department assistant in the cubicle and also includes children at home or in schools. Our another concept of invisible cup is related with these abuses taking place in our society. Invisible Cup is a computer monitoring, recording and capturing software which helps in monitoring the activities done on any computer system. This can be very useful in keeping a check on employees and children so as to reduce the loss of productivity of resources and also help us to ensure that our kids are on the right path or not. I believe that the session ahead on this concept provides us the opportunity to discuss on the quality and planned need to education in order to prosper. Well-educated graduates get better jobs. Trained and well-monitored workers enable companies to compete successfully in local or global markets, and this empowered individual becomes creative entrepreneurs who will create new ventures and jobs for a country like India burdened by effect of unemployment. We have delivering with a passion to use technology to make people's lives more convenient, enjoyable and most importantly secured. This concept has been pleasing parents, employers all around by making them work easier and adding more fun and convenience to their lives. Our goal is to increase the number of people who can be benefited by this concept, and we would request for your kind cooperation and support so that a larger section of society can be helped and we may be a part of a great social reform. On the same account, we are expanding the value of partnership today. Thank you.
now I would like to request Sri Sunil Tilki, Mr. Bhupendra Acharya, CMG of Thaat Technotech Limited, Mr. Manoj Shetty, Mr. J.P. Nand, Mr. M.C. Roy, SDO, for lighting of the butter lamp for the opening of the seminar of the day. Please, please. Hey, Alexander. To request our Chief Managing Director, Mr. Bhupendra Acharya, to give some more elaborated words regarding the Discover Brain and Invisible Cups. Some reason because संडे है और बहुत सारे लोग संडे की वजह से अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम होती है. थैंक यू सर फॉर कमिंग. बहुत सारे हमारे नए एम्प्लॉय हैं जो यहाँ पे आए हैं और जो कुछ टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इसको हम किस तरीके से अपनी लाइफ में, किस तरीके से अपनी जिंदगी में, किस तरीके से हम अपने लोगों को समाज में एक अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग काम कर सकते हैं. मैं अभी आप एक सेमिनार का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख रहे थे. आप संदीप महेश्वरी को सुन रहे थे. ही इज माय गुड फ्रेंड. बहुत अच्छा बोलता है और आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है. imagebazaar.com का बहुत बड़ा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है एंड बहुत अच्छा बोलता है और हम कुछ उससे भी सीखते हैं जिंदगी में. बिकॉज जिंदगी में अगर कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो बस ये है कि अच्छा सोचना है, अच्छा करना है. सिर्फ सोचना नहीं है, सोचने के साथ साथ एक्शन भी लेना है. बहुत सारी चीजें हम बहुत हर एक चीज पे मैं आगे 1 से 1.5 घंटा आप लोगों को हर एक टेक्नोलॉजी पे बारीकी से एक एक चीज को एलिब्रेट करने की कोशिश करूंगा. मोस्ट ऑफ जितने भी गेस्ट हमारे आए हैं, इनवाइटेड हैं, थैंक यू फॉर कमिंग. संडे को आप लोगों ने टाइम निकाल के जो हमारे पास आए हैं. आज हम एक नए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमारी जो समाज में जो चीज हो रही है इनको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं. तो मैं थोड़ा सा ताज ग्रुप ऑफ कंपनी के बिहाफ से आपको वेलकम करता हूं और एक छोटा छोटा चीजों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और इस काम में हम किस किस तरीके से हम समाज में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व, जिस तरीके से जो पिछले 15 सालों में जो रेवोल्यूशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आया है, हम कैसे इससे लोगों तक अच्छे चीजों को उन तक पहुंचा सकते हैं. ये हमारा मेन मकसद है. ताज ग्रुप ऑफ कंपनी में अभी हम बात कर रहे हैं. ताज टेक्नोटेक लिमिटेड, दिस इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके अंदर में कुछ ब्रांडेड हैं जो आपने देखा. डिस्कवर ब्रेन जो आज हमारा मेन सब्जेक्ट है. सेकंड नंबर पे इनविजिबल कॉप, थर्ड नंबर पे मोबाइल कॉप, इधर है एंटीवायरस कॉप. उसके बाद आपने नीचे देखा होगा एडुग्लोब, राइजिंग किड्स, ISO, ताज इन्फिनिटी आर्ट्स, ग्लोबल साइन एक हमारा ऑटोकैम लिमिटेड है जिसके कुछ ब्रांड्स हैं हमारे बाइक सेनर एंड स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, वेब डेवलपमेंट, ताज रॉयल स्कूल्स हमारे कुछ आने वाले हैं. इसके अलावा कीवा एक एनजीओ है हमारा जो कि ग्लोबल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें हम 500 गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं. और तब कुछ ताज CRM है, ताज मल्टीमीडिया है जो हम लोग 3D एनिमेशन एंड मूवी का जो क्लिपिंग होता है काम करते हैं. तो मैं एक एक ब्रांड के ऊपर जिस पे डिस्कस करना है उसको हम एलिब्रेट करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं. डिस्कवर ब्रेन जो हम अभी बात कर रहे थे, डिस्कवर ब्रेन नाम से समझ में आता है कि ये कुछ दिमाग का डिस्कवर करने वाला, माइंड डिस्कवर करने वाला है. और नो योर सेल्फ इसका एक स्लोगन है. नो योर सेल्फ मतलब दिमाग की खोज करिए और अपने बारे में जानिए. इसको पूरा का पूरा हमारा 30 मिनट का सेशन रहेगा जिसके ऊपर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा और वो चीज कितनी जरूरी है हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन करेंगे. उसके बाद इनविजिबल कॉप, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. इनविजिबल कॉप इज द कंप्यूटर मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर. बेसिकली ये डिजाइन किया गया है जो सोशल मीडिया और इंटरनेट में जो मिसयूज हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए. उसके बाद है इन मोबाइल कॉप, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ फॉर पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम है जिसमें आप जो बच्चे होते हैं जो एंड्रॉइड, ये बेस्ड है एंड्रॉइड पे,
जो कि एंड्रॉइड में जो भी एप्लीकेशन में बच्चे काम करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं। एंटीवायरस है, दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांड वी आर गोइंग टू लॉन्च इन दिस 27 ऑफ जनवरी, जो कि बिट डिफेंडर, अगर इंडिया में आप लोगों ने क्विक हील और कैस्पेस का नाम सुना होगा, जो कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे, वर्ल्ड में जो नंबर 1 है वो बिट डिफेंडर है। बिट डिफेंडर के टेक्निकल राइट्स हमने 110 करोड़ में कुछ लिया है, जो कि 27 से हमारा शुरू हो जाएगा, जो कि इंडिया के 25% मार्केट को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। बिकॉज एवरी मंथ देयर इज 2 मिलियन यूजर, 20 लाख यूजर होते हैं एंटीवायरस के, जो मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा एडुग्लोब मैगजीन है, दिस इज द लार्जेस्ट एजुकेशन मैगजीन इन दिस वर्ल्ड। में भी हम लोग प्लान उसी के लिए कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। सम ऑफ इन्वेस्टर आर कमिंग टू फ्रॉम अब्रॉड, फिनलैंड से कुछ इन्वेस्टर आ रहे हैं। जो हमारा काम बिहार एडिशन हम लोगों ने शुरू किया है, जो 20 एडिशन में आ रहा है, ये अलग अलग बंगाल का, बिहार, महाराष्ट्र, अलग अलग एडिशन में आ रहा है। राइजिंग किड्स हमारा एक प्ले स्कूल से, जो लगभग 1100 फ्रेंचाइजी हम लोगों ने डिजाइन किया है, जो कि अगले सितंबर तक, इस सितंबर तक हम लोग इसको अचीव कर लेंगे। उसके बाद आईएसओ आप लोग देख रहे हो, आईएसओ में हम लोग यूकाज, आईएसओ में लगभग, अगर किसी को पता हो, आईएसओ में लगभग पूरे वर्ल्ड में 70 के आसपास बोर्ड हैं, जिसमें एक्टिव बोर्ड 3 हैं, जो कि यूके गवर्नमेंट का है यूकाज, यूएसए का है एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का है। तो हम लोग ने जो यूके जो यूकाज है उसका सर्टिफिकेशन बोर्ड लिया है, जो कि हम 18,000 ग्रेड्स में सर्टिफिकेशन इश्यू कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया एंड 7 कंट्री, जो आसपास के 7 और कंट्री हैं वहां पे। उसके बाद है ताज इंफिनिटी आर्ट्स, हमारा एक आर्ट्स एंड पेंटिंग का काम होता है, जो एक कंपनी है हमारी। ग्लोबल साइंस, जो आपके सामने रखा हुआ है बाइक चैनल, ये हम लोग 2002 से काम कर रहे हैं। इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल में क्लीनिंग एंड शाइनिंग प्रोडक्ट्स में हम लोग आज की डेट में हैं, जो कि इसका कॉन्सेप्ट के बारे में मैं 5 से 6 मिनट में आपको आगे ब्रीफ करूंगा। ताज स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट, ताज रॉयल स्कूल जो आने वाला है, और आपका ताज सीआरएम, ताज मल्टीमीडिया एंड गीवा। गीवा का एक मेन मकसद है, हमारा एक मिशन है। जिंदगी में मेरा सिर्फ बिजनेस करना और पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, मुझे कुछ अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ना, अच्छे लोगों को साथ लेके चलना, अच्छे एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में रखना और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना और लोगों को सपोर्ट करना। गीवा का एक मिशन क्या था, थोड़ा शायद मैं एज में छोटा हूं लेकिन सोचता थोड़ा बड़ा हूं। मेरा मेन मिशन है कि अगले 20 सालों के अंदर लगभग 1 करोड़ लोगों को हम लोग इंडिया में एजुकेट करने वाले हैं। और मेरा सपना है, दिस इज माय मिशन एंड विजन, कि लगभग 1 करोड़ लोगों को अपनी कंपनी में मैं रखूं, जो कि 2 पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी हैं, और वी आर गोइंग टू लॉन्च 7 मोर कंपनी विद इन दिस ईयर, हम लोग प्लान कर रहे हैं। गीवा का उसमें एक जबरदस्त रोल है। गीवा का फुल फॉर्म है ग्लोबल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ग्लोबल एजुकेशन, द मोस्ट ऑफ, हमारे यहाँ पे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं, दे हैव बहुत टैलेंट है उनके अंदर, बट दे डोंट हैव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको अनस्किल्ड को स्किल्ड बना के उनको गारंटेड जॉब दे रहे हैं इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। मेन हमारा मोटिव क्या है, अभी हम लोगों ने बिहार से शुरू किया है, नीतीश कुमार जी ने इसका, हम लोगों ने एक वुमेन एजुकेशन के ऊपर 28 अप्रैल को हमने लास्ट ईयर एक नीतीश कुमार के साथ फंक्शन किया था, और आपके जो बिहार के एक आईटी मिनिस्टर है उनके सईद अली खान, उन्होंने भी इस पे हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा इससे मेन रोल क्या है कि उनको, जो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करके उनको गारंटेड जॉब देना, उनको पर्सनली डेवलपमेंट, लीडरशिप, क्वालिटी, कम्युनिकेशन पावर, इन चीजों को स्किल्ड बना के कंपनी के लिए उनको रिक्रूट करना, उनको प्लेसमेंट देना। ये मेरा वन ऑफ द माई ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी एज वेल एज और आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं टेक्नोलॉजी के बारे में, और मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके बारे में बताता भी जाऊंगा और एक लाइव डेमो दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही चीज अब मैं आपको बोलता हूं, जो लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं, कि उन चीजों पे विश्वास करिए जो आपको दिखता है, जो आप बिलीव करते हो। अभी आप लोग बहुत सारे सेमिनार सुन रहे थे, आप एक मोटिवेशन सेमिनार था जो आप संदीप का सुन रहे थे। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा मेन टेक्नोलॉजी को जो आपके साथ शेयर करने का है, कि चीजों को समझिए, चीजों को एनालाइज करिए, जब आपके दिल से आवाज आए इसको करना है, तभी आपको करना है। मेरा मेन मोटिव है कि हम इन टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जनरेशन को बदल सकते हैं, किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी से हम आगे अपनी जिंदगी को एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। क्योंकि ये जो लाइफ मिलियन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं और मैं उसको एनालाइज करता हूं, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखा है, मिनट सेकंड को यूटिलाइज करना जिंदगी में।
अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, जिसने टाइम को समझ लिया और अपनी जिंदगी में उसको इंप्लीमेंट करना सीख लिया, तो समझ लीजिए उसको फेलियर होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग बोलते हैं, और हमारे यहाँ एक ट्रेंड है इंडिया में, पेरेंट्स लोग हमारे यहाँ, अक्सर दुनिया एक चीज के पीछे घूमती है, दैट्स कॉल्ड एनवायरमेंटल टैलेंट। हमारे यहाँ सक्सेसफुल होने का एक ही रीजन बोला जाता है कि भाई आपको पढ़ाई करना है बेटा, क्योंकि कहावत भी है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब समथिंग, तो खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये ऐसा नहीं है। चीजें हैं कि हमें समझने की जरूरत है कि पढ़ाई ही सक्सेस का रास्ता नहीं है। सक्सेस और भी चीजें होती है जो इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि जेनेटिक टैलेंट्स बोला जाता है। अब ये जेनेटिक टैलेंट क्या है, किस तरीके से, मैं डिस्कवर ब्रेन से शुरू करना चाहता हूं। डिस्कवर ब्रेन के थ्रू हम लोग एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसका नाम है DMIT, जिसका फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर मैं इसको हिंदी में और थोड़ा एक्सप्लेन करूं आपको, डर्मेटो मतलब स्किन होता है, ग्राफिक मतलब हाथों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। हाथों के फिंगरप्रिंट्स के द्वारा जो मल्टीपल इंटेलिजेंस को दिखाया जाता है उसको DMIT रिपोर्ट कहते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या जरूरी है, मैं उसके बारे में बहुत सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा आपको। उससे पहले आपको बारीकियां समझनी होंगी कि टेक्नोलॉजी इस तरीके से ऐसे क्या बता सकता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये DMIT रिपोर्ट जो है हर एक इंसान को जरूरत है। इवन हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय नए रिक्रूट होते हैं सबका हम वो टेस्ट करवाते हैं। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारे यहाँ रिक्रूट होने जा रहे हैं क्या वो कंपनी के लिए एसेंशियल हैं, क्या वो कंपनी के कैपेबिलिटीज पे खरा उतरेंगे, हर तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। और हमारा इसमें 70% टारगेट एजुकेशन सेक्टर होता है, जहां बच्चे होते हैं, जहां बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे मैं बोल रहा था कि सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक रीजन बताते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो बहुत सारे यहाँ पेरेंट्स हैं जो अपने, और आप लोग भी एक बच्चे होंगे अपने टाइम पे, तो दिन रात एक ही आपने सुना होगा, बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो, दिन पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट आज के बच्चे, मैं आपको बता दूं कि माँ बाप से लगभग दे आर मोर देन 10 टाइम्स इंटेलिजेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। वो अपने माँ बाप से 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंस है। आप जानते हैं क्यों? बिकॉज दे बॉर्न इन टेक्नोलॉजी, दे बॉर्न इन टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी में पैदा हो रहे हैं। जब आप पैदा हुए थे तो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी था, शायद मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, गेम्स नहीं थे, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, वीडियो गेम नहीं थे, और आपके पास जो आप आज के डेट में टेलीविजन है, इंटरनेट है, कुछ नहीं था। तो यही रीजन है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था जिंदगी में कुछ करने के लिए, तो आप सिर्फ पढ़ाई करते थे, और एक ही रीजन था कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आज सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मैं खड़ा हूं, आई एम नॉट वेल क्वालिफाइड। मैंने बहुत सारी MBA की डिग्रियां नहीं ले रखा है, लेकिन मेरे लिए आज 7,000 लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और लगभग 3 से 4,000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे अंडर में काम करते हैं। ये सक्सेसफुल होना, ये जरूरी नहीं कि पढ़ के ही सक्सेसफुल बना जा सकता है। पढ़ना जरूरी है, दैट बेसिक एजुकेशन नीड फॉर द सोसाइटी, जो आपको जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी टैलेंट को समझना जरूरी है। अब होता क्या है, मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम कहां है। हमारा समाज, हमारे माँ बाप, अगर पीछे जो कुछ लोग बैठे हैं, अगर ज्यादा है तो प्लीज आगे आके बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल होगा। हमारे जो माँ बाप और हमारे जो पेरेंट्स हैं हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन हम बच्चे से क्या, बच्चा क्या चाहता है ये कभी पेरेंट्स नहीं पूछते हैं। ये रीजन क्या है पता है? एक एज गैपिंग है, एक जनरेशन गैपिंग है। आज बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चा क्या चाहता है, उसकी जो जेनेटिक टैलेंट है, जिसको बोला जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंट टैलेंट्स, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा। अब बच्चों को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी चीजों को पहचानना है। दुनिया बोलते हैं, मैंने एक बुक पढ़ा है और मैं बहुत सारे आर्टिकल देखता हूं, पढ़ता हूं और अपने आप को अपडेट करता हूं कि जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप उस चीज को सिलेक्ट करो जिसको बिना 24 घंटे बिना रुके, बिना थके, बिना खाए, बिना पिए, जिसको कंटिन्यूटी के साथ कर सकते हो, और जिससे आपको प्यार हो। आप जिंदगी में उन चीजों पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये दुनिया में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला बताया है, और ये मैं मानता हूं। मैं मात्र 4 घंटे सोता हूं, मैं रात में 3 से 4 बजे तक बाहर के प्रोजेक्ट देखता हूं, और सुबह 6 से 7 बजे उठ के मैं जिम चला जाता हूं, फिर 9-10 बजे ऑफिस के लिए तैयारी करता हूं। ये सोने की जो बात बता रहे थे, अगर जिंदगी में आदमी अपनी जिंदगी में सही तरीके से यूटिलाइज कर लें और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, और अच्छे मिशन और विजन के साथ आप जी रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन जिंदगी में वो कुछ
प्लानिंग करते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना था। तो सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ प्लानिंग नहीं करना, प्लानिंग के साथ साथ एक्शन भी लेना है, और एक्शन के साथ साथ डिसीजन भी लेना है, और उसके साथ साथ आपका विल पावर भी होनी चाहिए कि आप उस जो सोच रहे हो वो उस लेवल पे हो, ताकि आप उस चीज को अचीव कर सको। अब यहाँ पे डिस्कवर ब्रेन आपको क्या सपोर्ट करेगा? आपको सपोर्ट करेगा आपके जेनेटिक टैलेंट को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, धोनी और बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम है जिन्होंने बहुत सारा क्वालिफिकेशन नहीं लिया है, बट दे आर सक्सेस इन दैट फील्ड। व्हाई? बिकॉज उनने अपनी जेनेटिक टैलेंट को पहचाना है। अब जेनेटिक टैलेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं। जेनेटिक टैलेंट, जिसको हम पैदाइशी खूबियां बोलते हैं, या मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं, या इनबॉर्न टैलेंट बोल सकते हो आप इसको। 1983 में फादर हावर्ड गार्डनर ने रिसर्च किया कि हर इंसान के अंदर एक टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। मतलब 8 तरीके का खूबी हर इंसान के अंदर होता है। जैसे मेरा ब्रेन है, मैं आपको बता दूं, मेरा जो दिमाग है या आपका जो ब्रेन है, उसमें 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल हैं। कितने हैं? 1200 करोड़। कभी सुना था आपने? पता था आप लोगों को? इंसान अभी सिर्फ नॉर्मल इंसान, आप और हम सिर्फ 3% अपने ब्रेन का यूटिलाइज कर पाए। तो क्या हम लोग क्या नहीं कर सकते इस दुनिया में? तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, और हमारा ब्रेन 5 डिवीजन में बटा हुआ है। प्री फ्रंटल, अलग अलग लोब्स हैं, 5 लोब्स हैं हमारे ब्रेन के। उसी तरह उस 5 लोब्स के अगर 2 भाग कर दिया जाए, जिसका रिसर्च 1981 में रॉबर्ट डब्ल्यू स्प्रे ने किया था, जिसको 1981 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कि हमारा जैसे राइट ब्रेन है हमारी लेफ्ट बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है? तो अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज आ रहा है कि अगर हमारा ब्रेन, अगर हम समझ पाए कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे में क्या खूबियां हैं, और मैं कैसे पढ़ सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में पढ़ने के सिर्फ 3 तरीके हैं। देयर इज 3 वे ऑफ लर्निंग, ओनली 3 वे इन द वर्ल्ड। 3 तरीके ही हैं जो पढ़ने के। फर्स्ट, विजुअल लर्निंग, यानी कि आप देखिए, पढ़िए और समझिए, मतलब देख के पढ़िए। सेकेंड, अच्छा एक काम करो, आप पढ़िए, मैं सुनता हूं और समझता हूं। ठीक है? थर्ड, इशारों से समझाना। ठीक है? सीइंग, कैनेस्थेटिक एंड, इस टाइप से आप 3 तरीकों से लर्निंग कर सकते हैं। अगर बच्चों को पता चल जाए कि उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, अगर आपको पता चल जाए कि आपके लर्निंग पैटर्न क्या है, तो आप जो 5 घंटे में लगा के भी दिमाग लगाते हो तो भी आपको चीज याद नहीं होता है। अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। लेकिन कब होगा? जब आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से ज्यादा सक्षम है अपनी चीजों को समझने के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड, हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। मल्टीपल इंटेलिजेंस में होता क्या है कि बहुत सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, कुछ लोगों को पढ़ने का जो एफिशिएंसी होता है, पुराने जमाने में बोलते थे कि सुबह 4 बजे माँ बाप उठा के भी एग्जाम में मार मार के उठाते थे, बेटा पढ़। पता क्यों? क्योंकि सुबह पढ़ के उठने से याद होता है। क्या है? मार मार के उठाते थे 4 बजे, नींद नहीं खुल रहा है, हाँ एग्जाम के लिए, एग्जाम है कल भैया सुबह, और 4 बजे मार मार के उठा के बोलते हैं पढ़ो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको 4 बजे सुबह उठ के पढ़ाई याद होता था। भैया मुझे रात को एकांत में पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे रात के, मेरे को दोस्तों के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक कान में लगा के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लिख लिख के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को घूम घूम के पढ़ना अच्छा लगता है। हर बच्चे की दे हैव मल्टीपल लर्निंग पैटर्न, अपनी अपनी थ्योरी, अपनी अपनी चीजें हैं। अब यहां बहुत एक इंटरेस्टिंग चीजें समझने की, कि जब चीजें ऐसी हैं, हम अपने बच्चों को समझ क्यों नहीं पा रहे, हम अपने आप को समझ क्यों नहीं पा रहे। हम जिंदगी में सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, लेकिन हम कोई राइट बिजनेस का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। हम फेलियर होते जाते हैं, एक दिन खुद को दोष देने लगते हैं, यार मेरी किस्मत ही खराब है, साला मेरे को जिंदगी में कुछ अच्छा मेरे साथ हुआ ही नहीं है। और ना वो एक्सेप्ट करता है कि जिंदगी में मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि उसने यही सोच लिया कि मेरे साथ कभी अच्छा होगा ही नहीं। मैं कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं जाना चाहता, मैं बहुत रियलिटी से आपको थोड़ा सा टकराना चाहता हूं, जो रियलिटी है, जो सच है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में जब आपको ये पता चल जाए कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारे समझने का तरीका है, किसी का जैसे इंट्रापर्सनल बहुत हाई होता है, किसी की लॉजिकल बहुत हाई होता है, किसी की मैथ्स बहुत अच्छी, तो इस तरीके से हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को। अपने अगर ये बच्चों को पता चल जाए कि उसकी इंटेलिजेंस क्या है, तो मैं बताता हूं, आज हम
हम लोग आज चाइना, अमेरिका, जापान से हम लोग पीछे क्यों रह रहे हैं? मैं आपको बताता हूं सच क्या है, रियलिटी से मैं आपको बताता हूं, रूबरू करता हूं। सच ये है कि इंडिया में हर कोई बच्चा, लड़का, लड़की सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट बिगेस्ट प्रॉब्लम कि उनको पता ही नहीं है कि जिंदगी में करना क्या है। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। एग्री? सबसे ज्यादा। एंड बहुत लोग अपनी जिंदगी में अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनको करना क्या है। और इंडिया में मैं बता रहा हूं, मैं अभी तक लगभग 15,000 लोगों को फेस टू फेस इंटरव्यू ले चुका हूं। मोर देन 15,000, मे बी approximately 20, 35,000, because we are the platinum customer for Mostro, नौकरी, टाइम जॉब, बहुत सारे लोगों के हम लोग ये सारे हम लोग प्लेटिनम पार्टनर हैं। तो मैं इतने लोगों से इंडिया में मिलता हूं, अलग अलग जगह में जाके मिलता हूं, उसको पता ही नहीं कि जिंदगी में करना क्या है। 20 से 25 साल के हो जाते हैं, एज हो जाते हैं, बोलते मम्मी पापा बताओ हम क्या करें। एंड दैट इज द डिफरेंस। इन चाइना, अमेरिका 5 साल का बच्चा है ना, उसको भी पता है कि जिंदगी में करना क्या है और बनना क्या है, और उसके पेरेंट्स को भी पता है। अब हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं? आज की डेट में हमारे पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटी ऐसे हो जो दुनिया में किसी का ना हो। भाई पढ़ने में भी नंबर 1, गाने में भी नंबर 1, डांसिंग में भी नंबर 1, दिखने में भी नंबर 1, और बात करने में भी नंबर 1, और समाज में अपने आप को हर चीज में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। अब खेल की बात करते हैं, हमारे यहाँ क्या करते हैं? एक बच्चा क्रिकेट भी खेलना चाहता है, फुटबॉल भी खेलना चाहता है, बास्केटबॉल भी खेलना चाहता है, वॉलीबॉल भी खेलना चाहता है, बॉक्सिंग भी करना चाहता है, स्विमिंग भी करना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? एक इंसान इतनी सारी चीजें कर सकता है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी टैलेंट को इस तरीके से वेस्ट कर देते हैं कि हम मल्टीपल चीजों में खुद को इंगेज कर देते हैं, और जो हमारा फोकस है वो हम कर नहीं पाते हैं। और हम इन्वायरमेंटल टैलेंट, मतलब जो मैं बोल रहा था चाइना और अमेरिका और चाइना में क्या होता है, बच्चा 5 साल का होता है ना, अगर वो लात मारता है ना तो माँ बाप बोलते हैं बेटा इसको फुटबॉल में डाल दो। यानी कि उसको पढ़ाई के साथ साथ उस चीज के लिए बचपन से तैयार करते हैं। आज 125 करोड़ की आबादी होने के बाद भी हमारे यहाँ एक गोल्ड मेडलिस्ट आने में हमको रोना पड़ता है कि भगवान एक तो दिलवा देना, नाक बचवा देना, कि पाकिस्तान से तो कम से कम एक गोल्ड मेडलिस्ट ऊपर हो, कम से कम टेनिस में इस लेवल पे हो। 125 करोड़ की आबादी में सोचिए, टैलेंट की कमी नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं सच में जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको पता नहीं है कि जिंदगी में करना क्या है। और हमारे यहाँ पे बच्चे एक सबसे ज्यादा मिसगाइडेड पेरेंट्स और बच्चे पता है कहां जाके होते हैं? जब 12th का एग्जाम देते हैं, उस टाइम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो एजेंट होते हैं एडमिशन कराने वाले, जिनको थोड़ा पैसा मिलता है, तो बच्चे भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पता है बच्चा इंजीनियर करना चाहता है, बोलते हैं कि डॉक्टरी में डाल दो, क्योंकि वहां से उसको ज्यादा पैसा मिलता है, उस एजेंट को ज्यादा पैसा मिलता है। कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो बोलते हैं इसको सीए बना दो, और कोई सीए करना चाहता है तो उसको बोलते हैं एमबीए करा दो। तो वो जो मिसगाइडेड होता है, यानी कि जहां से उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो आदमी वहां गाइड कर देता है। अब भैया बच्चा, लड़का और लड़की रिस्क भी नहीं लेते कि भैया जो माँ बाप कह रहे हैं वही मान लो ना, कल को भैया फेल हो गया तो कौन अपने सिर पे लेगा, जो जिंदगी भर ताने सुनेंगे इनके। तो वो बच्चा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और वो वही करता है जो माँ बाप और लोग कहते हैं। और उसने क्या किया, अपने टैलेंट को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना, उसने वो किया जो लोग चाहते हैं। अब होता क्या है, आप देखना है एक बहुत सारा डिफरेंस दिखने वाला है आपको, कि हम लोग इन्वायरमेंटल टैलेंट के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि पढ़ना 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 पढ़ना, और जिंदगी में हर एक चीज के पीछे हम अपने आप को छोड़ रहे हैं। अब जो जेनेटिक टैलेंट था, जो पैदाइशी जो खूबियां थी, जिसमें वो सक्सेस हो सकता था, और उस टैलेंट को अगर समझ पाता तो वो बहुत सक्सेसफुल इंसान हो सकता था अपनी चीजों में। अब समझना, अब एक जो जेनेटिक टैलेंट था वो उसका लो होता जा रहा है, ठीक है, वो कम होता जा रहा है। जो उसकी खूबियां थी वो दबती जा रही हैं, वो इन्वायरमेंटल टैलेंट के ऊपर भाग रहा है। अपने आप को इन्वायरमेंटल टैलेंट के लोगों के साथ में, जैसे पढ़ाई के लिए, जैसे भेड़ वाली चाल समझते हैं ना, कि बेटा हमारे पेरेंट्स कभी हैप्पी नहीं रहते कि भैया उसका, जैसे बहुत सारे मैं देखता हूं 80% किसी का मार्क्स आ जाता है तो माँ बाप बोलते हैं बेटा उसका तो 90 आया, तुम्हारा 80 आया, शर्म आनी चाहिए। तो इसमें भी अप्रिशिएशन नहीं है उनको, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहना है कि हम लोगों को उन चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। अगर आपने राइट कैरियर सिलेक्शन किया, राइट तरीके से काम किया, तो हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और हम लोगों को समझना होगा कि हम किस चीजों में ज्यादा कर सकते हैं, किस चीजों में ज्यादा, किस चीजों को अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको
इसकी 5 मिनट ट्रिक करके एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आगे चीजों के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहां पे आप लोग बैठ रहे हो कि हम लोग सिर्फ इन्वायरमेंटल टैलेंट के पीछे भागते हैं। जेनेटिक टैलेंट जो अपनी खूबियां हमको दबा देते हैं, क्योंकि माँ बाप भी बोलते हैं बेटा ऐसे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब वो पढ़ता जाता है, पढ़ाई में मन तो नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है भाई पढ़ना है। अब वो पढ़ता जाता है, जितना जितना उससे हो सकता है उतना करता जाता है। अब वो क्या होता है, वो टैलेंट दबता है, जैसे बड़ा होता है वो एक एवरेज इंसान बन जाता है। ना वो कर पाता है जो उसने सोचा था। वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता था, बहुत अच्छा सिंगर बन सकता था, बहुत अच्छा डांसर बन सकता था, लेकिन उसने अपनी सारी चीजों को दबा दिया, एक इन्वायरमेंटल टैलेंट को उसने अपने आप को बढ़ाया। अब वो इसमें इस तरीके से प्रॉब्लम हो गया कि वो न घर का है न घाट का है, मतलब वो एक एवरेज इंसान बन जाता है। जो उसके अंदर खूबियां थी, जो उसके अंदर ताकत थी, जो उसके अंदर जो मतलब उस चीज को फेस करने का एक, जैसे अपने सपनों से उड़ने का एक छोटा सा अपने मिशन दिखाया था कि बचपन में जो हम सपने देखते हैं, बचपन में जो हम सोचते हैं, बड़े होते होते वो बहुत चैलेंजिंग लगने लगते हैं। और मैंने जिंदगी में ये चीज मैंने देखा है अपनी लाइफ में। मैं आप लोगों के साथ एज में बहुत छोटा हूं, जस्ट 27, 28 का हूं अभी। मैं 14 साल से बिजनेस कर रहा हूं। अपनी जिंदगी में मैंने एक चीज देखा है, मेरे कंपनी में लगभग 15-16 डायरेक्टर हैं, एंड दे आर क्वाइट 60, 70, 80 ईयर्स के लोग हैं, जो आर्मी और कर्नल और ब्रिगेडियर जो रिटायर्स हैं वो भी मेरी कंपनी में हैं। एंड आई रिस्पेक्ट देम ऑलवेज। मैं उनकी सुनता हूं और डिसीजन वही लेता हूं जो वो लोग फैसला देते हैं मुझे। मैं कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए कमाना या कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट में ले जाने के लिए मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन है अच्छे लोगों को जोड़ना, अच्छी टैलेंट को, अच्छी टेक्नोलॉजी को समाज में पहुंचाना, और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने आप को एक अच्छे जगह में अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकें। मेरे पास अरबों खरबों रुपए नहीं है, मेरे पास कुछ अच्छे लोग हैं, मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, मेरे पास अच्छी सोच है, मेरे पास अच्छी मिशन है, मेरे पास अच्छा विजन है। तभी लोग मुझसे जुड़ते हैं, तभी लोग मेरे सोच से सोच जब मिलती है तब एक दूसरे को टीम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। जो आज हमने सिलीगुड़ी में सेमिनार रखा है, हमारा मेन मकसद था अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट डिस्कवर ब्रेन एंड इनविजिबल कॉप, जिसका मैं आगे आपको वीडियो एक एक चीज को डिफाइन करके देने वाला हूं। तो जो इन चीजों की जरूरत क्यों है हम लोगों को समाज में आज की डेट में, जिस तरीके से आईटी जनरेशन जो रेवोल्यूशन पे जो जा रही है, पिछले 15 सालों में जो एडिक्शन जो नशा होता है ना हमको टेक्नोलॉजी का, मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग हैं, अगर आपकी जेब से अगर अभी मोबाइल निकाल दिया जाए और उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए तो आप लोग सरवाइव नहीं कर पाइएगा। और आप ही लोग आज से 115 साल पहले बिना मोबाइल का भी चल रहे थे, बिना इंटरनेट का भी चल रहे थे, तब भी जिंदगी अच्छी खासी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। तो हम उससे पहले डिस्कवर ब्रेन का एक छोटा सा वीडियो है, उससे पहले एक कंपनी का हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं उसको दिखाऊंगा।